Okay, so let's start this doubt class 6.5 exercise question number 6. पहले हम वही देखते हैं. Okay, now just see this question number 6. We are given with a triangle PQR and two angles are given. One is 25, one is 65. Okay, so see, if I am drawing the same triangle here, I will draw this one, the same triangle that is given to us. Okay. This is the triangle in the question we are given with. This is question number 6 from exercise 6.5 PQR. Okay, this is the triangle we are given with, and this angle is given as 25 degree. This angle is given as 65 degree. And see, if we are given with these two angles, can we find the third angle? क्या हम ये वाला angle find out कर सकते हैं? Yes, We can find by using angle sum property, है ना? So by using angle sum property, the third angle will be angle P plus angle Q plus angle R. देखो तीनों का सम कितना होता है 180, है ना? 180 होता है ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम. नाउ एंगल P प्लस एंगल Q वी ऑलरेडी नो, Q के बारे में हमें ऑलरेडी पता है. एंगल Q इज 25 प्लस एंगल R इज 65 इक्वल्स टू 180. सो दैट मीन्स एंगल P प्लस 25 प्लस 65 इट विल बी 90 and 90. equal to 180. So that means angle P will be equal to 180 minus 90. So angle P is how much? 90 degree. It is 90 degree. Okay, that means 90 degree. अच्छा yes. अब ये देखो मैंने एंगल P फाइंड आउट क्यों किया है. देखो एंगल P 90 डिग्री है और तुम लोगों को एक चीज़ पता है, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री आता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है. और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास कौन सा एप्लीकेबल थ्योरम आ जाता है? हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग जाती है. ठीक है, देखो 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है. जब हम लोगों को पता लग गया है कि एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड के इक्वल होता है. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यही तो हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस प्रॉपर्टी में. दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें अच्छे से पता है द लॉन्गेस्ट साइड या फिर द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल. ओके, नाउ व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल? इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? QR. दैट इज QR स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स आर RP एंड PQ. सो RP स्क्वायर एंड प्लस PQ स्क्वायर. So that means what? After getting a right angle triangle जब मैंने इसको प्रूव किया, बिकॉज वन एंगल इज ऑफ 90 एंड देन आई एम यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन दिस वन, मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ. तो इसका मतलब क्या है? दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PQ. सी इन द क्वेश्चन हमें ना तीन पार्ट्स दिए हुए हैं. In the question we are given with three parts and the question is asking which of the following is true. So that means what? This second one is true. ये जो second वाला part है ना ये true है, because in this part QR square is equal to RP square plus PQ square, और ये हमने prove किया है. First and third part are not true. So this is the thing you have to do with this question. Okay, now let's see the next one. ये जो question है ना बहुत important है. See, find the perimeter of a rectangle whose length is 40 centimeter and the diagonal is 41 centimeter. देखो सबसे पहले मैं एक rectangle draw कर देता हूँ. Now suppose this is the rectangle I am having. You all know a rectangle is what? A figure having opposite side equal and each angle 90 degree. And then I will draw a diagonal in it. एक diagonal भी draw कर देते हैं हम. Okay, this is the diagonal we are having. Now the diagonal is given how much? 41 centimeter. That means if I am naming the rectangle as A, B, C, D,
मैं अगर रेक्टेंगल का नाम ABCD रखता हूँ ना, दैट मीन्स व्हाट, I am getting AC 41 centimeter, okay, AC as 41 and length, see length is also given, length is given, that means this BC, this is given 40 centimeter. अच्छा देखो, we have to find the perimeter, हम लोगों को क्या करना है, perimeter find out करना है. But you know, for finding the perimeter of a rectangle, जब हमें perimeter of rectangle find out करना होता है, the formula is what? The formula is 2 multiply by length plus breadth. But है ना, that means but we don't know about the breadth. हमारे पास length तो है, लेकिन ये जो breadth है यहाँ पे, ये तो हमारे पास नहीं है. But you can see one thing, अगर हमें ये डायगोनल पता है ना, दैट मीन्स वी नो दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ मैं, दिस ट्राइंगल ABC, आई कैन टेक दिस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब मैंने देखो AC स्क्वायर इक्वल टू लिखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मैंने क्यों लिखा है, हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग. व्हाट आई एम यूजिंग हियर, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग. सो सी, आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस ट्राइंगल ABC, मैं इस वाले ट्राइंगल को देख रहा हूँ, और ये ट्राइंगल ABC कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तुम लोगों को अच्छे से पता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं तो उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज होती है, और पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दैट मीन्स व्हाट, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज. सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आई एम राइटिंग. Now AC is what? It is 41. So I can take here, it is 41 equals to, then AB square, we don't know about AB, we have taken it as B, हमने उसको breadth माना हुआ है. So I will write here B square plus BC. BC is how much? 40. So I will be taking here 40 square. So it will be now 41 square. 41 square is how much? 41 multiply by 41. So it will be 4, 1 multiply 4, 1 ja 4, 4 4 ja 16. So it will be how much? 1681. When you will do the square of 41, it is 1681 equal to B square plus 40 square is how much? 40 square is how much? It will be 1600. Now this 1600 that is positive, this side will go to the left side and it will be negative. वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. सो 1681 माइनस 1600 इक्वल टू B स्क्वायर. ओके, सो दैट मीन्स 81 इक्वल टू B स्क्वायर. देखो अब हमारे पास यहाँ पे देखो, चेक करो, वी आर हैविंग B स्क्वायर इक्वल टू 81, लेकिन हमें ये स्क्वायर रिमूव करना है, बिकॉज वी वांट ओनली B, हमें B चाहिए. सो वी विल बी टेकिंग व्हाट, रूट. तो B स्क्वायर इक्वल टू 81, दैट मीन्स B will be equal to under root 81, and under root 81 that means B will be 9. So that means what, the breadth I am having here, it is 9 centimeter. Because you can see 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, तो अगर मैं B का स्क्वायर करूँगा ना तब 81 आएगा, तो इसलिए मैंने B को क्या लिया, 9. So that means perimeter will be how much, 2 multiply length plus breadth. So it will be 2 into L is what, L is 40 plus 40. what is B, 9. So 2 9. multiply by 49 and it will be 98 centimeter. That is our perimeter of the question. Okay, let's see the 8th question now. This is our question number 8.
Okay, this is question number 8. We are having the diagonal of a rhombus measure 16 centimeter and 30. Find its perimeter. So first we will be drawing a rhombus. एक rhombus draw करेंगे सबसे पहले हम. Okay. I am drawing a rhombus. See, suppose this is the rhombus I am taking. You know about rhombus. तुम लोगों को rhombus के बारे में पता है अच्छे से. A rhombus is having all the sides equal. उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं. दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग ए बी सी डी, दिस ए बी सी डी आई एम टेकिंग एज अ रोम्बस. देखो एक रोम्बस मैंने ड्रॉ किया है. दिस ए बी सी डी, इट इज हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल. ओके, सारी साइड क्या हैं? इक्वल हैं. देन डायगनल्स आर गिवन 16 सेंटीमीटर एंड 30. मीन्स द लॉन्गेस्ट डायगनल इज 30 सेंटीमीटर, जो बड़े वाला है. दैट इज दिस वन. इट इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर. ये वाला जो है हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, एंड द शॉर्टर वन, जो छोटे वाला डायगनल है, मीन्स दिस वन, द शॉर्टर वन. ओके, दिस वन इज हाउ मच? दिस वन इज 16 सेंटीमीटर. 16 सेंटीमीटर इन टोटल. ठीक है. जो AC है ना, देखो AC जो डायगनल है वो 16 सेंटीमीटर है, एंड जो BD डायगनल है BD दैट इज 30 सेंटीमीटर. अच्छा, नाउ यू डू नो वन थिंग. तुम लोगों को एक चीज़ अच्छे से पता है दैट डायगनल ऑफ अ रोम्बस, डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. बाइसेक्ट ईच other at 90 degree. Now what is the meaning of this thing? इसका मीनिंग क्या है कि diagonal of a rhombus bisect each other at 90. That means what? कि अगर ये दोनों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे सी, they are intersecting at this point O. I am taking this one, this point I am taking as point O. Both the diagonals are intersecting at this point. दोनों डायगनल इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट. दैट मीन्स दिस ओ बी एंड ओ डी, ये जो ओ बी और ओ डी पार्ट है ये इक्वल है, एंड दिस ए ओ एंड ओ सी आर ऑल्सो इक्वल. ओके, सो द थिंग इज, सी, when we are talking about a rhombus ना, rhombus is what? see, any quadrilateral, जो हम एक quadrilateral ड्रॉ करते हैं ना जिसकी 4 साइड्स होती हैं. देखो ये 4 साइड्स हैं. मैंने यहाँ पे एक quadrilateral ड्रॉ किया और इसकी कितनी साइड्स हैं? 4. एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. ये चारों साइड है ना, ये इक्वल भी हैं. देखो, हाँ, तो मैंने बताया कि जिस फिगर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इफ़ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, लाइक दिस ए, आई कैन टेक P Q R S. मैं कहता हूँ कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाली फिगर ड्रॉ की और इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? एक रोम्बस है. और तुम्हें पता है जब हम इसके डायगनल ड्रॉ करते हैं ना, डायगनल मीन्स देखो एक डायगनल ये ड्रॉ हो गया है. ठीक है. अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना. ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन. और एक डायगनल ये ड्रॉ किया मैंने, तो ये जो 2 डायगनल होते हैं ना, ये आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. ये जो मैं 2 डायगनल ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मीन्स हाफ हाफ कर देते हैं एक दूसरे को. मतलब देखो ये पी आर पूरा डायगनल था ना, ऐसे ही देखो यहाँ पे जब मैंने 2 डायगनल ड्रॉ किए, ए सी ड्रॉ किया और बी डी ड्रॉ किया, 2 डायगनल है ना, ए सी एंड बी डी, तो इसका मतलब क्या है कि ये हाफ हाफ बाइसेक्ट हो गए हैं. बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में. लाइक दिस ओ बी पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना ओ बी, ये किसके इक्वल है? ओ डी के. दैट मीन्स अगर हमने लिखा था कंप्लीट डायगनल बी डी को कितना लिखा था? 30 सेंटीमीटर. मैंने यहाँ पे लिखा था ना कंप्लीट डायगनल बी डी को मैंने 30 सेंटीमीटर लिखा था. दैट मीन्स आई कैन टेक दिस ओ बी 15 सेंटीमीटर एंड दिस ओ डी ऑल्सो 15 सेंटीमीटर. मैं इन दोनों को 15-15 ले सकता हूँ. देन दिस ए ओ सी, ये वाला देखो ए ओ और ओ सी को देखो, ये कंप्लीट ए सी जो था वो कितना था? 16. और मैंने बताया ये बाइसेक्ट करता है. दैट मीन्स जो ऊपर वाला है वो 8 सेंटीमीटर ए ओ, एंड दिस ओ सी विल ऑल्सो बी 8 सेंटीमीटर. ये 8 सेंटीमीटर बनेगा.
तो नाउ वी कैन इजीली फाइंड, हम ये साइड ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वी कैन फाइंड दिस साइड ए बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, राइट ट्राइंगल ए ओ बी, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सो दैट मीन्स ए बी इज वट, ए बी तो हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ए बी हमें नहीं पता है। सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ इज 15, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ओ बी इज 8। सो ए बी स्क्वायर विल बी 225 प्लस 64. So it will be AB square will be equal to 289. So AB will be equal to what? अंडर रूट 289 के फैक्टर्स करेंगे तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 289 17 का। दैट मीन्स AB विल बी 17। और देखो अगर हमारे पास AB 17 सेंटीमीटर है तो BC भी 17 आएगा, CD भी 17 आएगा और AD भी क्या आएगा? 17 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स व्हाट? द हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर विल बी 4 into 17, 68 सेंटीमीटर। दैट विल बी आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन। देखो जब हम बात करते हैं ना सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर की, देखो सम दोनों में क्या होता है? 180। देखो मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताता हूँ कैसे होते हैं। अगर हम एक तरफ बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, और एक तरफ हम बात करते हैं लीनियर पेयर, देखो दोनों केसेज में ना जो एंगल्स का सम होता है, सम तो दोनों में 180 होता है। इसमें भी 180 आता है, इसमें भी दोनों एंगल्स का सम 180 आता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम लीनियर पेयर की बात करते हैं ना, लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स एक ही लाइन पे बनते हैं। एक ही लाइन पे मतलब जैसे अब ये हमारे पास एक लाइन हो गई और मैं इसके बीच में ऐसे, अब देखो इसमें क्या होगा हमारे पास? मान लो मैं कहता हूँ कि एक एंगल हमारे पास है ये वाला 60 डिग्री और एक एंगल है हमारे पास ये वाला 120 डिग्री। तो देखो दोनों का सम करने पे 180 आएगा। लेकिन हम लीनियर पेयर इन दोनों को क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर हैविंग बोथ द एंगल्स। सी दिस एंगल इज AOB एंड द अदर वन इज दिस वन COB। ओके, एक एंगल है AOB, एक है COB। इन बोथ द एंगल्स वन आर्म इज कॉमन। जब हम लीनियर पेयर की बात करते हैं तो इन बोथ एंगल्स सम इज 180 एंड सम तो 180 आएगा ही, साथ में क्या आएगा? वन आर्म कॉमन, कॉमन वर्टेक्स। हाँ, एक आर्म कॉमन आती है, ठीक है, वर्टेक्स भी कहते हैं। और आर्म जो है ना पूरी, ये देखो OB, ये आर्म जो है दूसरे वाले एंगल में भी है, इसमें भी, दैट मीन्स इट इज कॉमन। लेकिन जब हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है? इफ़ वी आर हैविंग एनी टू एंगल्स, देखो मान लो मैं कहता हूँ मैंने ना दो एंगल्स बनाए, सपोज एक ये एंगल बना रहा हूँ मैं और एक इधर मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये वाला एंगल हमारे पास 80 डिग्री है एंड दिस वन इज 100 डिग्री, ये वाला 100 डिग्री है। नाउ सी AOB, देखो ये वाला एंगल है AOB, ठीक है, और ये वाला एंगल है POQ, ठीक। देखो दोनों अलग अलग एंगल हैं बट द सम इज 180, दोनों का सम 180 है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री बोलूंगा बट आई विल नॉट से दैट दे आर लीनियर पेयर। इन दो एंगल्स को मैं लीनियर पेयर नहीं बोल रहा। Why I am not saying linear pair? Because they are not linear pair, they are not on a single line। ये एक सिंगल लाइन के ऊपर एंगल नहीं बन रहे हैं। बट ये दोनों एंगल्स देखो, एक सिंगल लाइन AC एक लाइन थी, उसके ऊपर दोनों एंगल हैं। दे आर लीनियर पेयर बट दे आर नॉट, दे आर ऑल्सो हैविंग सम 180। सो दिस इज द डिफरेंस।